हेलो मेरे प्यारे जीनियसेस। इस इंटरेस्टिंग से वीडियो का टॉपिक है वर्क। अब देखो भाई, बड़ा फ़र्क है द वे वी यूज़ द टर्म वर्क हमारी डे टू डे लाइफ में एंड द वे वी यूज़ इट इन साइंस। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा एंड देन यू टेल मी हाउ वर्क प्लेज अ रोल इन दीज सिचुएशंस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आमिर खान जैसे फिल्म स्टार्स ये अक्सर बड़े ही चैलेंजिंग रोल्स टेकअप करते हैं, जैसे कि उन्होंने किया था फिल्म दंगल में, है ना। आमिर खान वर्कड रियली हार्ड इन द जिम टू रिड्यूस हिज वेट एंड बिल्ड हिज बॉडी। उन्होंने वेट्स उठाए, ही मूव देम बाय अप्लाइंग अ फोर्स। नाउ ऑन द अदर हैंड, स्टूडेंट्स जैसे कि आप भी बड़ी मेहनत करते हो अपने एग्जाम्स के लिए, है ना। आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बड़ा जो है कठिन तरीके से, हार्ड तरीके से सोचते हो, एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम स्टडिंग, इजंट इट? तो somehow you can sense that your work while studying is very very different than what Amir Khan's work was while building his body. Your work is how we use the term work in day to day life, है ना। तो when you are studying and preparing notes, you are not moving anything anywhere, क्यों, है कि नहीं। अब आमिर खान के एग्जाम्पल के बारे में सोचो। Now, when Amir lifts weights, so he is applying a force on the weights and this force displaces the object. So in science, we consider the work done by Amir Khan to be the actual work. वैसे कोई डाउट नहीं है कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग रियली हार्ड वाइल स्टडिंग, बट व्हेन यू सिट एंड स्टडी, neither movement nor a force causing the movement is observed. इसीलिए साइंस के हिसाब से नो वर्क इज डन। इन साइंस सिर्फ दो कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। पहला, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड दूसरा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब ये मंकी जंप करता है फ्रॉम द ट्री, तो अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग द मंकी, दिस फोर्स हैज डिस्प्लेस्ड द मंकी, तो देर इज वर्क डन। नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ रनिंग एथलीट। ठीक है, एथलीट्स जो हैं दे एक्सर्ट अ मस्कुलर फोर्स वाइल रनिंग। ठीक है, तो दिस फोर्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस pushes her forward, so therefore work is done. Now let us consider a simple case where the force is acting in the direction of displacement. इस बच्चे के एग्जाम्पल ले लो। अब दिस किड हु इज पुशिंग अ टॉय कार, ठीक है, तो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉय कार आर इन द सेम डायरेक्शन। अब सपोज करो अगर ये बच्चा, दिस किड अप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स एफ on the car in this direction. So let's say that the toy car has moved a distance s in the direction of the force. The work done W by the kid in pushing the toy car is defined as the product of the force and displacement. The work done equals force multiplied by displacement. That is W is equal to F multiplied by S. ठीक है, thus the definition of work done is work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. The work has only magnitude and no direction. Now what is the unit of work done? The work done is defined as the force multiplied by displacement, so its units are Newton meter. Now, in place Newton meter, we can also use joule, which is denoted by the symbol J. So 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. So work done on an object is taken to be positive when the force is in the direction of displacement. Now, on the other hand, the work done is taken to be negative when the force acts opposite to the direction of displacement. तो अब जब आप ये वर्क डन वाली चीज समझ गए हो, तो जरा इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करो। A young kid is playing with her sister and is pushing her around in a basket.
अब पहला, if the kid applies a constant force of 200 newtons and pushes the basket 10 meters in the direction of the applied force, then बताओ what is the work done by the kid. दूसरा, the force of friction acting on the basket is 125 newton. तो what is the work done by the force of friction? तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कहूंगा, इस वीडियो को भी पॉज करो, जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन यू कम बैक एंड वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन. ठीक है? हाँ जी, तो नाउ दैट यू आर बैक, आई होप आपको जो है वो पहला क्वेश्चन तो एटलीस्ट उसका जवाब मिल गया होगा. सेकंड वन हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी हो, बट डोंट वरी, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है? तो सबसे पहले पार्ट ए पे आते हैं. नाउ द किड pushes the basket with a force of 200 newtons, है ना, and the basket has moved a distance of कितना, 10 meters. तो therefore work done by the kid, WK. अब यहाँ पे K stands for kid. ठीक है, खाली क्लैरिफाई कर रहा हूँ. ओके, तो it is equal to the force multiplied by the distance. तो WK is equal to 200 multiplied by 10 which is equal to 2000 और units है joules. ठीक है ना? अब आते हैं पार्ट बी की तरफ. द क्वेश्चन सेज दैट देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बास्केट. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स? सोचो. करेक्ट. द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. तो ऐसा करते हैं, फटाफट से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. ठीक है? अब ये जो है ये है बास्केट. ठीक है, एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स ऑफ द किड. ठीक है, नाउ इफ दिस इज द अप्लाइड फोर्स ऑफ द किड, देन द फ्रिक्शन फोर्स पॉइंट्स इन दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, राइट. दस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन WF, और यहाँ पे छोटा f स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन. ठीक है, दैट इज इक्वल टू -125 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि हो जाता है -1250 जूल्स. अब आप पूछ सकते हो कि why is there a minus sign? The minus sign is there because the direction of friction is opposite to the direction of displacement. And बताइए अब easy था कि नहीं था? था ना? तो आप ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो अपने जीनियस ऐप पे. वक्त हो गया मेरे जाने का, बट मैं आपसे मिलूंगा जल्द विद अनदर ऑसम जीनियस वीडियो. तब तक जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.